दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश की सरकार ने 3 बड़े लॉज में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट नए अमेंडमेंट्स को पूरा उसको चेंज कर दिया है और नए बिल पास हो गए राज्यसभा में। उसके बाद जो है अब जो लॉ प्रक्रिया है उसमें काफी बदलाव आए हैं। हम जानने पहुंचे हैं उन लोगों से जो रोज लॉ को प्रैक्टिस करते हैं, लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडवोकेट्स की, और अभी मैं मौजूद हूँ उदयपुर के डिस्ट्रिक्ट सेशंस। आइए बात करते हैं उन लोगों से जो रोज लॉ को प्रैक्टिस करते हैं और लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनके कार्य प्रणाली में जो रोज का उनका काम है उसको किस तरीके से इफेक्ट होने वाला है। Amendments should have been made in a form that it should not become a problem for the advocates as well as for judiciary and for a common man. The previous amendments were made in many of the sections. The same could have been done for this also. Instead of making a new act complete in all the three, that is Indian Penal Code, Evidence Act and Criminal Procedure Code, that should have been done. And then there will be a lot of problems because judiciary will have to go through the entire new set, advocates will have to go through the entire new set, police will have to, and our police department is not that well equipped with the knowledge that they can acquire from these. Again, they will have to work hard for this, so it becomes a problem. And what I feel is that by changing one big for electronic media, see, a common man doesn't know what is in fact this electronic media, and police will take advantage of this electronic media because once they record these statements under electronic media, they can misuse it. There could be pressure from police, there can be, witness can be purchased by anybody, the truthfulness of that will be doubtful. So that should have not been done. Still we have that recording of video for cases under 376 and other heinous offences, but they are not in all common cases. But here they have changed it like this, that there will be video conferencing or recording of the statements under 161 will be recorded by electronic media. That will hamper the system. And I personally feel that instead of making the entire all the three major acts change, instead of this they should have made some amendments which were very important. And even today I feel that there are certain amendments which should have been done, has not been done in these acts. So what I personally feel is it should have not been done by this central government. Since they have done it, there is no option left now that we can change it. Still, courts will also find it very difficult. So how challenging it will be for the law practitioners like you and the law officers? For us, it will not be with that big challenge. Reason being, we have been reading all these old laws, and new laws are hardly of much significance. They are almost parallel and similar to the old one. But only thing is that change the section numbers. So that is only what we have to see. Otherwise, there is not much of major changes. See, if you see the procedural law, there are hardly sections where they have been changed, but the number of sections they have changed. They have made it to 531. The old was 484. So these new sections, again, they are incorporated, so they will have to be looked into. But there will not be much difficulty because once you read, you get used to that. Of course, it will take some time to come into practical use, and to remember those sections we have to read and read again and again, then we can only do it. And now the biggest problem will be that there is no commentary in all the three major acts in relation to these sections which are changed. So unless and until that commentary is there, it will be too difficult for us to appreciate that section. Even courts will find it difficult. Okay, thank you, sir. धीरे धीरे बदलाव आया। अब जैसे उन्होंने कहा साहब कि एक्सीडेंट होता है गाड़ियों से, वाहनों से, तो गाड़ी को तो थाने में बंद कर दो और चलाने वाले को बंद छोड़ दो। तो कारण क्या था, उस समय गाड़ियाँ उन अंग्रेज़ों के पास थी, एक्सीडेंट एक होता है, आज भी हो रहा है, पहले भी होते थे। तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए कानून बनाया कि
गाड़ी बड़ी खड़ी रहेगी, बाद में छोड़ा लेंगे, हम आज भी चले जाएं। आज जो नए कानून बने हैं वो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए बने कि आज क्या चाहिए। अब आप देखिए 100 साल पहले कहा था फला कानून के लिए 100 रुपये जुर्माना है, आज क्या आएगा 100 रुपये में। आज हमारे सामाजिक सरोकार में बदलाव आया। पहले विवाह का होते थे, तलाक की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, बाद में इंडियन जो है। अब उसके बाद भी आज उसको भी बने हुए करीबन 70 साल हो गए। परिवर्तन की आवश्यकता है, पढ़ाई लिखाई हुई, समय नहीं है, टाइम नहीं है। और इसी तरीके से जो प्रोसीजर है, आप देखिए कि मैंने एक मुकदमा किया 90 में, उदयपुर में उसका फैसला हुआ 98-97 में, और फर्स्ट अपील प्रोविज़न है उन्होंने हाई कोर्ट में की, और 25 साल में हाई कोर्ट में नंबर नहीं आया। अब कब नंबर आएगा? जब मेरी तीसरी पीढ़ी यहाँ आती है। एक आदमी को न्याय कब मिलेगा? न्याय कागज़ में नहीं होना चाहिए, न्याय दिखता होना चाहिए। और जो नए कानून बने हैं इसमें त्वरित न्याय होगा। एक तामील के लिए 10-10 साल लग जाते हैं। आप देखिए यहाँ नया कानून आया NI एक्ट, चेकों के मुकदमे होने लगे। आज उदयपुर की कोर्ट में 8 कोर्टें NI की है, हर कोर्ट में 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार मुकदमे हैं। वो 10-10 साल में फैसले नहीं हो रहे। नहीं होने का कारण क्या है कि तामील नहीं हो रही है। अब वो व्हाट्सएप देख लेंगे, नहीं आएंगे, उसको तामील मान ली जाएगी और आगे चलेंगे। तो ये जो बदलाव आया है, इसी तरह से सज़ा का प्रोविज़न है कि मान लीजिए उन्होंने कहा साहब कि बच्चों का बलात्कार हो रहा है, फिर अभी अपनी सरकार ने पॉस्को एक्ट बनाया, लेकिन उनको भी इस नए कानून के अंदर सज़ा का प्रावधान कड़क कर दिया गया, सज़ा बढ़ा दी गई। सज़ा किसने दी जाती है? इसलिए कि दूसरे लोग उससे नसीहत दे करके उस अपराध को नहीं करें। ये नहीं है कि उसने सज़ा दे दी और जेल में बंद हो जाएगा सोसाइटी को, लेकिन सोसाइटी को नसीहत देने के लिए है। तो ये जो कानून बनाए हैं अभी हम लोगों ने भी पढ़े नहीं हैं, पढ़ेंगे, हमको भी पढ़ना है और जजेज को भी पढ़ना है। कोई अकेला हमारे बार के साथ नहीं है। अगर मैं पढ़ के जाऊँगा और जज नहीं पढ़ के जाएगा तो क्या फैसला देगा? तो अभी महीने 2 महीने 3 महीने इसको लगेंगे सेटअप होने में। लेकिन जो ये कानून बने हैं नए भारत की, हमारे नए प्रधानमंत्री की जो नई अवधारणा है, सबका साथ सबका विकास, तो कोर्टें बढ़ानी पड़ेगी, कोर्टों को इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, कोर्टों को स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा। तो वास्तव में जो राम राज की कल्पना है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, जबकि ताकि उस गरीब आदमी को न्याय के लिए भटकना नहीं पड़े जी। और इसी थीम पर हमारी उदयपुर की बात पिछले 40 वर्षों से न्याय का विकेंद्रीकरण हो और हमको जोधपुर नहीं जाना पड़े, इसलिए हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं। ताकि मैं निश्चित मानता हूँ कि नए भारत के लिए एक नया मील का पत्थर साबित होगा। ऐसा है कि बहुत ही गहन चर्चा, विशेषज्ञों को बिठा के, लॉ से संबंधित सारे जितने भी विशेषज्ञ थे उनको बिठा के पिछले 3-4 सालों से इस पर मंथन हो रहा था। और सबसे जो विशेषज्ञ हैं, जो इस कानून के जानकार हैं, उनसे भी उनकी राय ली गई थी सभी से। उसके बाद ये सारे अमेंडमेंट किए हैं। ऐसा है कि इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और CRPC सब में जो चेंज किया है, निश्चित रूप से एक बड़े मंथन के बाद चेंज किया। बहुत से ऐसे सेक्शन थे जिनकी आवश्यकता नहीं थी, उनको भी हटाए, और बहुत से सेक्शन थे जिनमें कुछ जोड़ना था, उनमें वो भी जोड़े, ताकि आज की जो परिप्रेक्ष्य में जो ज़रूरत थी वो इस तीनों में किया है। और जहाँ तक समझने की बात है, हम अधिवक्ता हैं और जजेज आए दिन नई नई चीज़ हमको पढ़नी पड़ती है, तो धीरे धीरे पढ़ के हम इसको रूटीन में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और जनता भी जो है धीरे धीरे जब व्यवस्था बदलती है तो सारी चीज़ें खुद उस तरह से ढलने की पूरी प्रयास करती है, जनता भी करती है, पुलिस भी करेगी और हम सब करेंगे। और इसमें समय ज़रूर लग सकता है, पर मुझे विश्वास है कि हम सफल होंगे। हर चीज़, कोई भी चीज़ अगर नई शुरुआत होती है तो थोड़ी दिक्कत तो आती है। और जो नया कानून आया है तो सोच समझ के बनाया गया है, तो हर चीज़ की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती है। तो पुराने कानून में कुछ विसंगतियाँ थी जो अब नए कानून में दूर होगी, और कुछ ऐसी चीज़ नई ऐसी भी आएगी जो प्रैक्टिकली उसको फॉलो करना पॉसिबल नहीं होगा। कि नई CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट में जो अमेंडमेंट किए गए हैं, क्योंकि जो पहले का कानून था वो सन 1860
से बना हुआ था। यानी कि 279 में जो जुर्माना था, 279 में 500 रुपये, 337 IPC में 1000 रुपये जुर्माना, जो 1860 में था। यानी कि कई बीघा ज़मीन बिक जाती थी जुर्माना जमा कराने में, और आज वही जुर्माना 500 रुपये और 1000 रुपये है। तो आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो, देख सकते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि नया कानून आया है, तो सुनने में ये आया है कि इससे क्या है कि न्यायिक जो प्रक्रिया है उसमें तेज़ी आएगी, फैसलों का निस्तारण जल्द से जल्द होगा। अब उसके लिए कितनी दिक्कत अधिवक्ताओं को आती है या कितनी जुडिशरी को आती है, तो ये सारा चलने के बाद ही होगा। इसको फॉलो करेंगे, इस प्रोसीजर को किस तरह से अपन फॉलो करते हैं उसी पे डिपेंड होगा, और उसी के आधार पे बता पाएंगे कि ये कानून सच में सही है, कारगर है या 20 नहीं। तारीख को जो कानून पास किए हैं, जिस पर अभी शायद कल 1-2 दिन में पहले ही अभी शायद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है, तो अब ये लागू होना इनका तय है। और लेकिन जो पुराना कानून चल रहा था उसमें कुछ जो कमियां थी या कुछ लो नहीं था, उसको लेकर के बार बार जो है माननीय उच्चतम न्यायालय जो है केंद्र सरकार को बोल चुकी है, और विधि आयोग को भी इस संबंध में काफ़ी सारी रिकमेंडेशन दे चुकी थी, लेकिन सरकार ने कभी तक किया नहीं। 2018 में जैसे इन्होंने जो साक्षियों की जो गवाह आते हैं, गवाह की सुरक्षा के जो प्रावधान है, उस प्रावधान के ऊपर जो है एक महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में माननीय उच्चतम न्यायालय पहले से ही बोल चुका था कि इसके ऊपर आपको प्रावधान करना चाहिए। इसी प्रकार से जो मॉब लिंचिंग वाला जो ये कह रहे फांसी की सज़ा है, तो मॉब लिंचिंग के लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट जो है शक्ति वाहिनी वर्सेस भारत संघ के मामले में जो है कह चुकी थी कि इसके ऊपर आपके पास कानून होना चाहिए। चलो ठीक है, इन्होंने बोले 5 साल बाद आए। इसके अलावा विधि आयोग ने जो अपनी 242वीं रिपोर्ट पेश करी थी, उस रिपोर्ट के अंदर भी मॉब लिंचिंग पे कानून की सख्त आवश्यकता महसूस करी थी, लेकिन फिर भी जो है कुछ मामलों को लेकर के अभी इसमें IPC में कुछ विसंगतियाँ रह चुकी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा भारतीय न्याय संहिता जो डाली है उसमें अब इन्होंने एक ये जरूर कहा है कि भाई हमने ऐसा इसमें जो है, जैसे जो पहले IPC थी उसमें 511 धाराएँ थी, उसकी जगह अब जो नई जो भारतीय न्याय संहिता इन्होंने डाली है उसमें 351 धाराएँ बताई है। लेकिन जो धारा जो कम करी है उसमें मेरा ये कहना है कि जो IPC में अंदर जो 511 धाराएँ थी उसमें कम से कम 15-20 धाराएँ तो पहले से ही रिपुल करी हुई थी जी। और इसके साथ में जो अपने जो धारा 2 से लगा करके जो 250 तक का जो पार्ट है IPC का, वो परिभाषाओं से संबंधित था। और इन्होंने अभी जो नई संहिता आई है उसमें क्या किया, धारा 2 में ही जो है सारी की सारी ABCD करके धाराएँ एक साथ पिक कर दी है, और इस आधार पर इन्होंने थोड़ी कम करी है। बाकी इस तरह से कुछ है नहीं, क्योंकि नए एडिशन और दिए हैं इन्होंने। और दूसरा जो है नागरिक सुरक्षा संहिता को लेकर के जो हमारा CRPC है उसके लिए इनका ये कहना है कि हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ला रहे हैं, तो वो लाए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसका उद्देश्य ये बताया कि मुकदमों की निस्तारण में तेज़ी होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब जब तक ये जो जुडिशरी है और जो कानून से रिलेटेड व्यक्ति है, जब तक अपने मन में ठान नहीं लेंगे तब तक मुकदमों का निस्तारण जल्दी हो नहीं सकता। क्योंकि जो पुरानी जो दंड प्रक्रिया संहिता थी उसके अंदर भी जो है त्वरित निस्तारण के काफ़ी सारे प्रावधान थे, लेकिन जो है उस प्रावधान का पालन किया नहीं गया। क्योंकि CRPC में भी प्रावधान थे डिस्चार्ज के शुरुआती स्टेज पे जो है आप डिस्चार्ज कर सकते हैं मुलजिम को, चाहे 239 CRPC हो या 227 CRPC हो। इसी तरह 256 से लगा के 259 के प्रावधान जो थे वो मुकदमे के त्वरित निस्तारण के लिए फ़ायदेमंद थे। पुलिस को भी 169 में पावर था कि भाई आप मुकदमों को वहीं कहीं, अगर कोई दोषी नहीं है तो वहीं कहीं समाप्त करके उसको कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रावधानों का प्रावधान किया नहीं जा रहा था। दूसरा जो है मेरा ये मानना है कि इसमें जो है एक और नई सज़ा इसमें इंट्रोड्यूस करी। अब तक जो कानून में सज़ाएँ थी वो मृत्युदंड, कठोर कारावास, साधारण कारावास, जुर्माना और संपत्ति अधिग्रहण, ये 5 प्रकार के दंड ही अभी तक कानून में चल रहे थे। ये जो नई भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें एक सामुदायिक सेवा को जो है एक नए दंड के रूप में स्थापित किया, जो एक मतलब एक नया दंड है। अगर किसी व्यक्ति को ये इन 5 सज़ाओं के अतिरिक्त कोई लगता है पछतावा है उसको, तो किसी हॉस्पिटल के अंदर जाके उसको कुछ सेवाएं करने का, सामाजिक सेवाएं, पेशेंटों की सेवा करने के लिए काम दे सकते हैं, या किसी संस्था में जा कर के झाड़ू साफ सफाई करने का काम दे सकते हैं, किसी बगीचे में पेड़ों को पानी पिलाने की सज़ा भी दे सकते हैं 6-7 महीने तक। जो भी हमारे जो किशोर न्याय अधिनियम है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 में, उसमें ये प्रकार की सज़ाएँ जो है पहले से जो है बाल किशोरों के लिए जो है पहले से चल रही है, इसको इन्होंने वयस्कों के लिए भी लागू किया है। तो अब देखो ये नई आई है संहिता, तो इसमें थोड़ा चैलेंज भी है हमारे लिए, क्योंकि जो पुराने मुकदमे चल रहे हैं वो दंड प्रक्रिया संहिता के हिसाब से चालू होंगे और वहीं रहेंगे, लेकिन अब जो नए आने वाले मुकदमे हैं वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से चलेंगे। तो एक साथ जो है 4-5 साल तक जो है दोनों ही संहिताओं का चलना रहेगा, और जो प्रेसिडेंट्स जो है
जो पूर्व निर्णय जो है उच्चतम न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय के, वो जो पूर्व निर्णय जो है वो अभी आईपीसी से और सीआरपीसी के से जो चल रहे एग्जिस्टिंग लोग है वो ही एक तरह से थीम उसी की मानी जाएगी जब तक कि न्यायालय उच्चतम न्यायालय नए कानून नया जो है अपना कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं करे। ठीक, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, लेकिन बताएं। मेरा नाम दिनेश गुप्ता है, मैं एडवोकेट हूँ। पिछले लगभग 25-30 साल से वकालत कर रहा हूँ। भाई कानून हमेशा इंसान का काम है, रोज़ नए कानून बनते हैं, रोज़ नए विषय जुड़ते हैं। अभी नए नए ढंग से अपराध जिस प्रकार से हो रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो एविडेंस एक्ट में जो बदलाव किया गया, आपराधिक कानून में तकनीक के आधार पर जो कई लोग मुलजिम बच जाते थे, अब तकनीकी आधारों का भी इसमें एविडेंस के रूप में साक्ष्य ग्रह होगी और इसका लाभ मिलेगा। और जहाँ तक अध्ययन की बात हो, लॉ का विषय, गहन अध्ययन का विषय, लगातार इसमें अध्ययन करना पड़ता है। और इवन खाली एडवोकेट ही नहीं, जो जिनके लिए रात दिन काम आता है, पुलिस प्रशासन, उन सब के लिए ये एक रोज़ अध्ययन का विषय है। और इसमें अब नए रूप से कानूनों का नई धाराएँ, नए सेक्शन इसमें आरोपित किए जाएंगे, तो एक अध्ययन का विषय है और लगातार अध्ययन के बाद सारी चीज़ सामने आएगी। लॉयर, मेरा नाम अशोक कांक है, एडवोकेट हूँ मैं। 15 सालों से मैं वकालत का पेशा में कार्यरत हूँ। कानून में जो बदलाव हुए हैं ये समय के साथ बहुत जरूरी है। अंग्रेजों के समय से जो कानून का डरा चला हुआ था उसमें परिवर्तन लाना बहुत ही आवश्यक था। सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, इन तीनों में बदलाव किए गए हैं। और सीआरपीसी में जो बदलाव किए निसंदेह वो पूरे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए, मुलजिमों के लिए, मुजरिमों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे प्रोसीडिंग बहुत जल्दी बढ़ेगी। तारीख पे तारीख देने वाला जो डरा चला आ रहा है वो खत्म होगा और बहुत सारी सुविधाएं कानून में इन लोगों के लिए मिलेगी और हमारे वकीलों के लिए भी बहुत सहायक रहेगा। कि सीआरपीसी एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही शुभ है और सबका हम स्वागत करते हैं। एविडेंस एक्ट जो पहले चली आ रही थी वो जूम केसेस पे चल रही थी वही थी, लेकिन अब जो वापस नई न्याय संहिता ये पूरी लाए हैं उससे नए केसेस में वो प्रोसीडिंग जल्दी बढ़ेगी। और पुलिस वालों के लिए भी इसमें बहुत सारे लाभ बनाए गए हैं। इनको पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करके और नई चीज़ें सब क्रियान्वित करनी पड़ेगी। ये अभियोजन पक्ष के लिए फ़ायदेमंद नहीं है और अभियोजन के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात, पुलिस को जो छूट दी गई है वो बहुत ज़्यादा गलत दी गई है। उनको 90 दिन की रिमांड की पावर दे दी है। पहले 24 घंटे में अगर एफआईआर आपको न्यायालय में भेजनी थी तो उस पर भी इन्होंने क्लियर कुछ नहीं किया है कि टाइम पे पहुंच जाएगा। और कुछ इसमें अच्छा भी है कि परिवादी जो अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है उसके बारे में वॉच रखेगा। और रही बात अभी तक जो कानून चलता है उसके अंदर और इसमें धाराओं का परिवर्तन हुआ है और कुछ अमेंडमेंट किए हैं, लगभग वही हैं, कोई ज़्यादा अंतर वाली बात नहीं है। और ये रहेगा कि अब सारी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी जुडिशली को, अधिवक्ताओं को और पुलिस को। आपको लगता है कि आप लोगों के लिए चैलेंजिंग होगा ये? 100% चैलेंजिंग है और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सभी को। और मेरा नाम कल्पित जैन, मैं 18 साल से वकालत कर रहा हूँ। यहाँ भी प्रैक्टिस किए, ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस किए। ये जो चेंजेस आए हैं, ये जो बिल जिसका गजट पब्लिकेशन हुआ है, उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ना तो ये लेंदी प्रोसेस है, बहुत ही पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनाया है। लॉ में चेंजेस होना एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जब भी कोई लॉ चेंज होता है या जिसमें एडिशन, अल्ट्रेशन, अमेंडमेंट टोटली किया जाता है, हर सेक्शन में हर एक्ट में एक सेक्शन होता है जो सेविंग्स एंड रिपील्स का सेक्शन होता है। इसमें एक्ट में भी जैसे भारतीय न्याय संहिता है, उसके अंदर सेक्शन 356 जो दिया गया है उसमें सेविंग्स एंड रिपील्स में जी आईपीसी को रिपील किया गया है। लेकिन उसके अंदर एक प्रोविज़न ये दिया गया है कि जो पुराने एक्ट हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो उनकी कार्यवाहियाँ हैं वो एज इट इज़ चलती रहेंगी। इसलिए पुराने एक्ट्स के ऊपर या उनको लेंदी होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और रही बात बुक्स की, लाइब्रेरी की, तो आर्टिकल 141, 142 में कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है, जो ऑबिटा डिक्टा है, कि उसके अंदर जो वर्जन या जो व्यवस्था दी गई है वो व्यवस्था हमेशा तक प्रभावी रहती है जब तक कि उसको ओवर रूल नहीं कर दिया जाए। तो पुराने जो जिस्ट निकाले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में वो हमेशा लागू रहेंगे। उसके अंदर जो कानून की सारभूत बात है, जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, वो हमेशा लागू रहेंगे। जो तो एक्ट की प्रोसीजर में चेंज हुआ है और वो उस पहले के जो लेंदी प्रोसेस है उनको शॉर्टन करने के लिए हुआ है।
और जो ऐसे प्रोविजंस हैं जो अननेसेसरी ट्रायल को प्रोलॉन्ग कर रहे थे उनको हटा दिया गया। और रही बात पढ़ने की, नए एक्ट को पढ़ने की, तो वो एडवोकेसी जो है वो एक लर्निंग प्रोसेस है और कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। हर दिन नया पढ़ना पड़ता है, हर दिन नए लॉ आते हैं, हर दिन सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा नए लॉ दिए जाते हैं, अपने वर्जन्स में संशोधित किया जाता है। तो इससे मुझे जो मानना है, मैं जो मानता हूँ ये एक पॉजिटिव वाइब है, न कि नेगेटिव वाइब है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका है नहीं। तो नए आने वाले केसेस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू नए प्रोविजंस के लगेंगे, लेकिन पुराने की ट्रायल पुराने की तरीके से चलता जाएगा। और बड़ा है तब तक ये लगता है कि एक्ट पुरानी कार्यवाहियों में जो विलंगम, जो हर्डल्स होते थे उनको ख़त्म करेगी। ठीक है, मानते हैं। मेरा नाम राजेश कुमार पटेल, जिला सत्र न्यायालय उदयपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। भारत एक विकासशील देश है और यहाँ पर जो नए कानून लागू किए हैं, भारत इतना हाईटेक नहीं है कि इतना तेज़ी से, आज मैं भी यहाँ खड़ा हूँ और मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो अगर वो बताएगा तो मुझे भी पता नहीं आज मैं उसके किस सेक्शन में मुकदमा दर्ज कराऊँ। और कई थानों में भी जैसे आज गलत एफआईआर भी दर्ज हो सकती है क्योंकि उनको भी पता नहीं किस सेक्शन में दर्ज करनी है। तो तैयारी कुछ नहीं थी, थोड़ा ये नेगेटिव इफेक्ट आएगा। और अपने यहाँ इसको जल्दबाजी में जो लागू कर दिया है, इससे क्या पहले से ही न्याय में देरी हो रही है अपने यहाँ, इतना करोड़ों केस पेंडिंग है। तो इस प्रकार बिना तैयारी के कानून लागू कर दिया है जो सबके लिए थोड़ी दुविधा बनेगी। तो मेरे हिसाब से सरकार को थोड़ी कार्यशालाएं पहले करनी चाहिए थी और थोड़ी सी ये बुक्स जो थानों में और न्यायालय में इसका वितरण कराया जाना चाहिए था ताकि वो पढ़ के थोड़ी तैयारी कर रहे, क्योंकि आज जीरो हो गए, आज कोई पता नहीं क्या करना है हमें। एडवोकेट दिनेश चंद्र मेघवाल जी, पिछले 18-20 साल से इस न्यायालय परिसर में और अन्य न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी। मैंने कई बार जजेस के एग्ज़ाम भी फाइट किए हैं, पास आउट भी हुआ हूँ जी सर। और कई बार सारे लॉ के जो एग्ज़ाम होते वो किया है, अच्छी तरह से अध्ययन किया लॉ को मैंने जी सर। मोटे तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि है ना, ये जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में जो मेजर अमेंडमेंट किए हैं, पूरा डिटेल तो भी आई नहीं है, एडिशन पूरा पढ़ा नहीं है, और मोटे तौर पे मैंने जहाँ सोशल मीडिया के जरिए या इस तरह का मैंने प्रयास किया है, तो मेरे ख्याल से वहाँ काफ़ी लॉ एक्सपर्ट बैठे होंगे, सोच समझ के किया होगा। लेकिन जब मुझे लगा कि इसमें है ना थोड़ा सा क्रम जो चेंज किए सेक्शन के सीआरपीसी में, आईपीसी में या एविडेंस में क्रम जो चेंज किए, मेरे ख्याल से क्रम चेंज नहीं करके एज इट इज रख के उसमें अमेंडमेंट कर देते। और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई सेक्शन है जो माननीय गृह मंत्री महोदय या माननीय सरकार को लगा कि इस तरह से हटा देना चाहिए, वो अच्छा लगा, तो वो चीज़ हटाने के लिए उसको निश्चित करने का प्रोविजन था या निश्चित कर सकते थे, उनको हटा सकते थे अपन। और क्रम चेंज नहीं, पहले भी ऐसा हुआ कई बार, जैसे कोई सेक्शन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर उपयोगी नहीं है तो उसको अपन निश्चित करके उसको हटा सकते हैं, उसका अलग अलग क्रम वही होता है। अब क्या होगा, एक तो सारे लॉ स्टूडेंट, जजेस, एडवोकेट्स हमारे को हमेशा पढ़ना पड़ता है। और मोटे तौर पे मैंने तो चीज़ देखी, खास कोई मोटे तौर पे चेंजेस नहीं है, जो पुरानी चीज़ें हैं वो कि वही उसका एक नया आयाम दिया है। कुछ चेंजेस किए, अच्छे चेंजेस किए हैं, पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कितना वो अच्छा रहेगा। सर इसके अब जो एकदम से चेंज हुआ है, आपको क्या लगता है उन पे भी इम्पैक्ट आएगा या वो एज इट इज ही चलते हैं? जिस दिन क्राइम होता है जी, उस दिन जो लॉ होता है उसके अनुरूप एकेडमिक कार्रवाई की जाती है। तो जो पुराने केसेस हैं उसमें जो उस हिसाब से जो सेक्शन में दर्ज हुए हैं या एक्ट में दर्ज हुए हैं वो उसी हिसाब से चलेंगे और उसी हिसाब से उनमें फैसले होंगे। 302 अब 302 जो मर्डर की जो धारा है उसमें मैंने देखा कि 101 पे लिया है पनिशमेंट ऑफ द मर्डर, तो उसमें 301 पे लेगा। तो वो क्रम जो चेंज हुआ है ना, अब हमारे को नए सीरियल से वापस वो चैलेंजिंग होगा आप लोगों को, वो होगा, तो उसके लिए फिर अध्ययन करना पड़ेगा। जी देखिए, ये जो बिल पास हुए हैं उसमें बेसिकली कुछ प्रोसीजर में चेंज आया हुआ है, कुछ राइट्स को और कुछ लाइबिलिटीज़ में जो भी पनिशमेंट वगैरह उसमें चेंज आए हुए हैं। बेसिकली जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अपना चलता था वो ब्रिटिशर्स के हिसाब से जो चलता था, उसके अंदर कुछ जो सेक्शन थे या कुछ जो ऑफेंसेस थे उसकी जो पनिशमेंट थी वो काफ़ी कम थी। तो उस हिसाब से वो पनिशमेंट एग्रीवेट करके अभी के सिचुएशन के हिसाब से जो चेंज है, जो प्रोसीजर में चेंज है, जो एक स्पेसिफिकली एक जो सेट प्रोसीजर चल रहा था तो इतने सालों से चल रहा था, कुछ में टाइम कम कुछ में टाइम ज़्यादा, वो वाला जो प्रोसीजर चेंज है वो भी एक बेनिफिशियल फ्रूटफुल है प्रोसीजर में अगर हम देखें तो।
भारतीय साक्ष्य संहिता की अगर बात करी जाए तो उसमें बेसिकली ऐसा कुछ बड़ा चेंज नहीं है। वो जो सेक्शन पहले जो थे वही सेक्शन है, अभी कुछ सेक्शन आगे ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन उसमें अभी जो इंडिया के जो पर्सपेक्टिव से जिस वे में होना चाहिए, जो कुछ एविडेंसेस एडमिसिबल होने चाहिए, नहीं हो किस हिसाब से होने चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस हमारे इसमें किए गए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। और मुझे लगता है कि जो लॉ है वो एक चेंजिंग थिंग होती है, वो हमेशा सोसाइटी के हिसाब से चेंज होना चाहिए, और सोसाइटी जब चेंज होती है तो लॉ क्यों ना चेंज हो। लॉयर्स के लिए कितना चैलेंजिंग होने वाला है ये चीज़, क्योंकि पूरा एक नया प्रोसेस जो होगा वो इम्प्लीमेंट होगा, तो उसमें आपको काफ़ी सारा चीज़ नए सिरे से पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। जी देखिए, मेरे हिसाब से जिन्होंने ऑलरेडी प्रोसीजर को समझ चुका है उनके लिए ये इतना टफ नहीं होगा। एक वो अगर वो पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके के चेंजेस है, और वो रेगुलर जब वो चेंज आएंगे तो वो अपने आप उस हिसाब से वो चीज़ें ढल जाएगी। मेरे हिसाब से इतना टफ नहीं होगा कि हम यूँ कहें कि पूरा प्रोसीजर ही चेंज कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रोसीजर वही चला है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से या अभी के जो चेंजेस है सोसाइटी के हिसाब से, उसके लिए जो नीड था वो चेंजेस उसमें हुए हैं जो मेरे हिसाब से ज़रूरी थे। वह जिस प्रकार से समाज गतिशील है और समाज में विकास हो रहा है, और जैसे दिन प्रतिदिन अपराधों में नवीनता आ रही है, और उन अपराधों को ख़त्म करने के लिए और उन अपराधों में सज़ा पुख्ता करने के लिए जो बिल लाए गए हैं सरकार के द्वारा, वह आज के समय और आज के परिप्रेक्ष्य को देखते आवश्यक है। आवश्यकता थी ऐसे बिल की कि जो किसी प्रकार से ब्रिटिशर्स समय से चले आ रहे कानून को ख़त्म करें, जो ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए एक्ट बनाए थे उनको ख़त्म करें। इसलिए भारत का एक अपना संविधान, और एक जैसे भारत का अपना संविधान है वैसे ही भारत की अपनी एक संहिता भी होनी चाहिए थी, कानून व्यवस्था होनी चाहिए। उसी अनुसार से बिल लाए गए हैं जो समाज को एक नई दिशा देंगे, अपराध को गति कम करेंगे, अपराध की गंभीरता को कम करेंगे, और जहां गंभीर अपराध होंगे और ऐसे छुपे हुए अपराध होंगे जिनके लिए पहले के बिलों में किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं थी, उन व्यवस्थाओं को इन बिलों में करके उन अपराधों को गंभीर करके और उन सजा पुख्ता करवाए जाने का जो कदम उठाया है सरकार ने, हाँ उचित है। हमें लगेगा थोड़े समय पश्चात जैसे जैसे रूटीन में आएगा उसी अनुसार हम अपने आप को इन बिलों के अनुसार ढाल लेंगे। नए ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ ऐसे अनवांटेड जो सेक्शंस थे उनको कम किया गया है। अपराध वही है, अपराध की परिभाषा वही है, बस उनके सेक्शंस को बदला गया है, जो थोड़ा धीरे धीरे समय के अनुसार वो हमारे नित्य क्रम में या नित्य दैनिक दिनचर्या में हमें आ जाएंगे, और हम थोड़ा सा उसको फेस करना पड़ेगा। मगर थोड़ी सी फेस हमारे लिए ये है कि जो व्यवस्था है, जो समाज है, उसके लिए बिल आवश्यक थे, उसको हमने करने में। जी, बिल तो ज़रूरी थे। इस समाज के हिसाब से जो चेंजेस आने थे वो तो आए हैं, मगर मेरे हिसाब से अभी भी कुछ अमेंडमेंट बाकी है। अब अमेंडमेंट में जैसे अभी इन्होंने 304 ये जो एक्सीडेंट वाला जो क्लोज था, उसमें उन्होंने कहा कि अगर मरीज को लेके जाएगा तो उसको हम है ना सज़ा कम देंगे, और फिर अगर वो नहीं लेके जाता तो उसको हम सज़ा ज़्यादा देंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंट्रोवर्सी है कि अगर कोई मरीज को लेके जा रहा है तो वो फर्स्ट एट ग्लांस ही उसने कन्फेस कर लिया, तो उसके लिए ट्रायल वाली कोई बात है वो बचती नहीं है। तो इस तरह का जो प्रोसीजर है जो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो वो उसमें थोड़ा सा मेरे को लगता है कि अमेंडमेंट है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो सोशल मीडिया है, रिकॉर्डिंग्स हैं, जो अभी इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गजट्स के जो एविडेंस हैं उनको भी एडॉप्ट कर लिया है, और वो तो बहुत ही ज़रूरी था। मगर कुछ इस तरह से जो चेंजेस किए हैं, जो ब्रिटिशर्स लॉ है जो ब्रिटिश ने अपनी सुविधाओं के लिए बनाए थे, वो चेंज हुए हैं भारत पर्सपेक्टिव के लिए, इससे आपसे बहुत अच्छा है। मगर ये जो कुछ चीज़ें हैं जो अभी वापस देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस है नहीं, प्रोसीजर वो का वही है, और नए कानून आते हैं तो उसको भी हम समझ जाते हैं, एक बार पढ़ने पर समझ में आता है। तो वो कोई बड़ा टास्क नहीं है। जो एडवोकेट में एक भ्रांति फैल गई है कि बहुत ज़्यादा हमको कुछ करना है, तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की बात नहीं है, मगर इसमें जो प्रोसीजर है एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है।